ہمارے لشکر یاش اور سشاوا پہنچنے والے میرے آقا. غدار بوئیودہ رویش کے متعلق خبریں جلد موصول ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بغداد میں ترکوں کے خلاف مزاحمت کرنے والی کوئی قوت نہیں. ہم مملکت کے تمام علاقوں پر قابض ہو سکتے ہیں. قبضے کی صورت میں ہمیں اس سرزمین پہ ہزاروں سپاہیوں کو مقرر کرنا پڑے گا. اس ملک کی رعایا دوسری سرزمین سے آئی ہوئی طاقت کی فوراً اطاعت نہیں کرے گی. یہ آسان نہیں ہوگا. لطفو پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا. راریش کو ختم کر کے اس کی جگہ کسی کو تعینات کرنا ہوگا ہمیں. میرے آقا، پیٹرو راریش کا بھائی اسٹیفن آیا ہے. آپ کے حضور باریابی کا منتظر ہے. آنے دو سے. اسٹیفن، تمہارا بھائی راریش بزدلوں کی طرح چھپا بیٹھا ہے. آخر تم کیوں میرے حضور پیش ہوئے؟ آپ جیسے عظیم ترین سلطان کے حضور یہ غلام قرض کرنے آیا ہے. آخر کار عظیم عیسیٰ کے فرزند یکجا ہو ہی گئے. اب ہمارا لشکر ترکوں کی پیش قدمی روکے گا. پاپا اعظم، یہ ایک خواب ہے. ترکوں کو اب تک کون روک سکا ہے؟ ہر مملکت اپنی طاقت کے مطابق جہاز اور سپاہی نکالے اور اپنی امداد سے پیچھے نہ ہٹے تو ترکوں کو غرقاب کر دیں گے سمندر میں. بالکل بجا فرمایا شہنشاہ. لیکن کیا مالٹا ہماری مدد کے لیے تیار ہے؟ 10 بحری بیڑے بھیجنے کی تصدیق ہوئی ہے پاپا اعظم. اہل جنیوا کی جانب سے ایک بادبانی جہاز اور 52 بحری جہاز ترکوں کے خلاف جنگ میں شامل کیے جائیں گے پوپ محترم. وینیڈکٹ 10 بادبانی جہاز اور 70 بحری جہاز صلیبی جھنڈوں کے ہمراہ روانہ کرے گا. ہم پرتگال کے لوگ 80 بادبانی جہازوں، وسیع بحری بیڑے، ہتھیاروں سے لیس سپاہ اور توپوں کے ہمراہ تیار ہیں. خوب. ویٹیکن اور اطالیہ کے دوسرے شہزادے 49 بادبانی جہازوں اور 36 بحری جہازوں کے ہمراہ جنگ لڑیں گے. فرانس کے شاہ کیوں چپ سادے ہوئے ہیں پاپا اعظم؟ یہ بتائیے صلیبی لشکر میں کتنے جہاز روانہ کریں گے؟ فرانس ترکوں کے خلاف ایسی محاذرائی میں ہرگز شریک نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں. فرانس کے بغیر بھی ہم 300 جہازوں پر مشتمل لشکر سمندر میں لا سکتے ہیں، لیکن لشکر کی سربراہی کے لیے سپہ سالار آندرے دوریا کا ہونا شرط ہے. ہم وینیڈکٹ کے حکمران کسی اور سپہ سالار کے ماتحت کام نہیں کریں گے. پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم سمندروں میں کتنے مضبوط اور طاقتور ہیں. بحری بیڑے کی قیادت ہر حال میں کماندار آندرے دوریا ہی کرے گا. یہ بات جان لیں کہ اتحاد کے لیے یہ میری لازمی شرط ہے. تمہارا بھائی راریش ہمارا نمک کھانے کے باوجود غدار بن گیا اور دشمنوں کا دوست بن گیا، ہمارے خلاف ہو گیا. ان تمام گستاخیوں کے علاوہ اس نے کبھی خراج بھی ادا نہیں کیا. کیوں ایسا ہی ہے نا اسریف پاشا؟ درست ہے آقا. راریش کی نافرمانیوں کی کوئی حد نہیں. آخر میں ہمارا دم بھرنے والے لیہستان پر بھی حملہ کرنا چاہا. اس کی نافرمانیاں گنواؤ مالکوچو. ترکوں کی خدمت کرنے والے وینیڈکٹ کے آلوے سے گریتی کو فریب سے سازش کرنے کے بعد قتل کروا دیا. ہمارے سلطان کے خلاف ہمیشہ وہ علم بغاوت بلند کرتا رہا. لطفو بادشاہ، ہمارے قانون میں غدار کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اسے عبرتناک ترین سزا دی جاتی ہے آقا. محترم ابو الفاتح محمد خان کے زمانے میں بغاوت کرنے والے افلاق و وداسی کا ذکری ولاد کا عبرتناک انجام کل عالم کے لیے عبرت کا باعث ہوا. ہم سے غداری کرنے والوں کو کڑی سزا دی جاتی ہے. ہماری اطاعت کرنے والے انعام کے حقدار ٹھہرتے ہیں ہمیشہ. اگر جیسا تم نے کہا سلطنت عالیہ سے وفادار رہنے کا ثبوت دو گے، پھر ہم تمہیں تمہارے بھائی کی جگہ بغداد و اداسی کا شاہ تعینات کر دیں گے.
میرے وفادار سپاہی اور میرے سب جانسار ہمیشہ عظیم آقا کے حکم کے تابع رہیں گے۔ اللہ کی رضا سے گریتی اور کچھ چھوٹے جزائر کے علاوہ بقیہ سب جزائر ہمارے ہیں، اور شکر ہے کہ ہم بہت مستحکم ہیں۔ دشمن کے بحری بیڑے کہاں چلے گئے پاشا؟ ہم نے جزائر فتح کر لیے، لیکن اب تک وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ دشمن نے اگر خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہمیشہ خاموش رہے گا۔ وہ یقیناً حملے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ پھر آج نہیں تو کل سمندر میں ضرور نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ نظر آئیں گے، ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی۔ بالکل، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ بحر روم پر ہمیشہ ہماری ہی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہاں سے دشمنوں کو نکال کر عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ میری تمام اشرفیاں ختم ہو گئی، مجھے کچھ ادھار دے دو۔ کیسا ادھار خاتون؟ تم نے پہلے جو ادھار لیا تھا وہ چکاؤ۔ لڑکیوں ایسے کھڑی کیا باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا درس نہیں ہے کیا؟ چلو مشق خانے میں جاؤ۔ سنبل آغا، ہماری اشرفیاں ختم ہو چکی ہیں، ہمیں وظیفہ دیا جائے۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا ہے سنبل آغا، ہمیں ایک اشرفی تک نہیں ملی۔ ہائے اللہ، تم سب تو بھوک سے مر رہی ہو جیسے۔ خاموش رہو سب، دیکھ لینا ہر کسی کو اس کے حق سے زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں بار بار سنبل آغا آپ یہی کہتے ہیں۔ صورتحال ٹھیک نہیں ملکہ، معلوم ہے سفر کی وجہ سے اخراجات میں دشواری پیش آ رہی ہے، تنخواہیں بھی مہینوں سے ادا نہیں کی گئی ہیں۔ ہمیں جلد از جلد اس کا مناسب حل ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ سفر بہت طویل ہوگا۔ میں اس مسئلے پر بذات خود توجہ دے رہی ہوں عفیفہ خاتون، جلد از جلد اس کا حل ڈھونڈ لوں گی میں۔ ہمیں ایک اشرفی تک نہیں ملی۔ اوہو، تم سب کو میری بات پر یقین نہیں ہے کیا؟ لشکر سفر پر گیا ہے اور تم سب کیسی بے شرمی سے اشرفیاں مانگ رہی ہو؟ کیا اپنا حق مانگنا جرم ہے آغا؟ اگر میرا دماغ گھوم گیا تو بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ بدماشی سے تم سب نے میرا راستہ روک لیا۔ تمہاری جگہ لینے کے لیے کتنی ہی خواتین ہیں باہر، اس کی خبر ہے کیا تمہیں؟ سنبل آغا، ملکہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ملکہ معذرت، ہمیں کئی ماہ سے وظیفہ نہیں مل رہا، اس کا پوچھ رہے ہیں ہم۔ سنبل آغا، ہمارے پاس ایک اشرفی بھی نہیں ہے ملکہ، کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ قطعاً ہم آپ سے گستاخی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف پوچھنا چاہتے ہیں۔ بس کچھ دن اور صبر کر لیں، آپ کو تمام ادائیگی یکمشت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ سنبل آغا، تو میرے ساتھ آؤ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ملکہ۔ سنبل آغا، اس طرح اور نہیں چلے گا، فوراً میرے پاس مرجان آغا کو بھیجو۔ آپ کا جو حکم ملکہ۔ دل و جان سے آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں شہزادی، حرم میں لاوا پکنا شروع ہو گیا ہے۔ آلہ، حرم ہر گزرتے دن حرم پر اپنی گرفت کمزور کرے گی، اس کا کمزور ہونا ہی ہماری فتح ہے۔ اس صورتحال سے کوئی بھی خوش نہیں ہے شہزادی، لیکن حرم سلطان کسی طرح ان کی خاموشی کا بندوبست کر دیں گی۔ ہاں یہ ممکن ہے، وہ خاموش کروا سکتی ہے، لیکن وہ آگ کو پھیلنے سے نہیں روک سکتی۔ جب تک ہم اس آگ کو ہوا دیتے رہیں گے وہ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی۔ اس کی ٹوکری کتنے کی ہے؟ صرف 2 اشرفیوں کی۔ اوہو، لشکر سفر میں ہے، اتنی قیمت کون دے اس کی؟ قیمت کچھ کم کرو، دیکھو ذرا۔ انسان فانی ہے، انسان کی حیثیت
انسان ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اے پائے تخت کے لوگوں، اے عوام الناس، آپ کسی طور اہمیت نہ دیں ان دربار میں بیٹھے حکم دینے والے علماء سو کو۔ علماء سو کہتے ہیں واللہ شیخ معشوقی کہتے ہیں صاحب، اکثر سے آئے ہیں یہ گناہ ہے، وہ حرام ہے۔ وہ جاہل نہیں جانتے کہ ہمارے پروردگار نے ہم پر سب کچھ حلال کیا ہے۔ اصل میں شریعت کی غلط طور پر تشریح کی جاتی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، پینا پلانا، کھانا سونا، سب عبادت بن سکتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ کھانا پینا کس طرح عبادت ہو سکتا ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، مانا کہ یہ تمام ارکان اسلام ہیں، مگر ان کے بغیر بھی اسلام کا تصور مکمل ہو سکتا ہے۔ حقیقی مومن تب بھی بن سکتا ہے جب سال بھر باقاعدگی سے نماز ادا کرے۔ وہ عید کی دونوں نمازوں سمیت اپنے رب کے سامنے سربسجود ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم بھی نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں یہ سب نہیں جانتا میرے بھائی، کیونکہ کوئی بھی انسان ہمارے رب کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ عبادتیں لوگوں کے لیے ہیں، یہ آشکار ہے۔ یہ اس لیے اتاری گئی تاکہ لوگ ایک دوسرے سے صلح جوئی کا برتاؤ کریں۔ کہاں رہ گیا یہ مرچانہ خواہ؟ خبر دے آئی ہوں ملکہ، لیکن کام کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ کام چور کہیں کا۔ اگر آپ چاہیں تو بلا لیتی ہوں ملکہ۔ ملکہ کہاں ہو تم مرچانہ خواہ؟ حرم میں ایک شور مچا ہوا ہے اور تم غائب ہو یہاں سے۔ معذرت چاہتا ہوں، محل کے کاموں میں مصروف تھا۔ کنیزوں کے وظائف اب تک ادا نہیں کیے گئے ہیں، کیا بتا سکتے ہو کب تک ادائیگی کی جائے گی ان کی؟ میں اس مسئلے کے حوالے سے مصطفیٰ پاشا سے ملا تھا ملکہ، لیکن افسوس کہ ابھی تک وقت کا تعین نہیں ہو سکا۔ سفر کے باعث اخراجات میں کچھ پریشانیاں ہیں۔ یہ پریشانی میں بھی جانتی ہوں مرچانہ خواہ، مگر مجھے اس کا حل چاہیے فوراً۔ انتظار کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ملکہ، یا پھر اس دفعہ یہ خرچہ اپنے پاس سے نہیں کروں گی میں، اس لیے کہ میرے پاس جو بھی معلومات ہے وہ سارا کا سارا فلاحی ادارے کی تعمیرات کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ جی ہاں ملکہ، میں جانتا ہوں، لیکن جب تک کوئی اور انتظام نہیں ہو جاتا میرا مشورہ ہے کہ یہودی تاجر سے قرضہ لے لیا جائے۔ سمجھ گئی، تم جا سکتے ہو۔ ملکہ تمہاری کیا رائے ہے سنبل؟ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں ملکہ، لیکن قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کر لینا بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ سنبل آغا، خواتین کا حال تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح یہاں حرم میں واویلا مچایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرم میں کسی بھی قسم کی بغاوت ہو جائے۔ دشمن کو موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی میں بالکل۔ کس کی مجال ہے کہ بغاوت کرے ملکہ؟ سب کو خاموش کر دیں گے اللہ کے فضل سے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ شخص بالکل پاگل ہے، بے ایمان ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ توبہ توبہ۔ بڑی باتیں کر رہے ہو برخوردار، انسان کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے سے تمہیں کیا خوف نہیں آتا؟ کیوں؟ میں تو حقیقت بیان کر رہا تھا صاحب۔ آپ کون ہیں؟ استاد جلیبی کہتے ہیں مجھے۔ ابو سعود صاحب، میرے بابا احترام سے آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ سے ملنا باعث شرف ہے میرے لیے۔ شیخ معشوقی کہتے ہیں مجھے۔ نام سنا ہے برخوردار، تمہارے بابا پیر علی کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ کچھ دیر قبل تمہارا بات سنا میں نے، تمہاری باتیں نہ دین میں ہیں نہ ہی عقل میں سماتی ہیں، ابھی جوان اور نہ تجربے کار ہو یہ آشکار ہے۔
अगर तुम इसी तरह दर्स देते रहे तुम्हारा अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। गर्दन कट जाएगी माज़अल्लाह। मेरी गर्दन अगर मेरे वास की वजह से कटती है तो कटने दीजिए इसे। दुरुस्त बात करने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। शहजादी, कई दिनों के बाद आना हुआ आपका। मैं तुम्हारे पास आई हूँ हुरम, क्योंकि मेरी समात तक बाज बातें पहुंची हैं। खैरियत, ऐसी क्या बात है? हरम में फैलती बेचैनी के मुतालिक मुझे बताया गया है महल के मुलाजमीन में वजीफा तकसीम नहीं किया जा रहा। शहजादी, मैं हल कर लूंगी, आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी। सफर के दौरान हो जाता है ऐसा। बताओ कितनी अदायगी है, मैं अपने खर्चात से अदा कर देती हूँ सब। जरूरत नहीं है शहजादी, मैंने कहा ना मैं हल कर लूंगी। क्या तुम कर लोगी हुरम? अपनी अना को बीच में मत लाओ, ये मेरे आका का हरम है। उनके वकार को ठेस पहुंचे मैं ये नहीं चाहती। शहजादी, आप तसल्ली रखें, मैं संभाल लूंगी ये सब कुछ। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो तो खबर कर देना, मैं मदद कर दूंगी। आखिर और कितने पुल टूटेंगे मेहमान साहब, और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? आका माजरत चाहता हूँ, आप जो कहें बरहक है, लेकिन नहर की जमीन बहुत दलदली है। उस पर बनाया हुआ पुल पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा है तो पानी के बहाव को बर्दाश्त करने वाला पुल तामीर क्यों नहीं करते? उसमें काफी वक्त लग जाएगा साहब। कितना वक्त लगेगा? अगर हम रोज शब भी काम करें तो 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा आका। हमारे पास इतना वक्त नहीं है आका। बारिशें दोबारा शुरू होने से पहले हमें नहर की दूसरी जानिब जाना होगा। तुम्हारी क्या राय है मतरकची? इन अमूर के माहिर हो तुम। रुत की ये नहर तूफानी है, इसे पार करना मुश्किल है आका। लेकिन पृथ की नहर से मुकाबला करने वाला एक उस्ताद है। अजम के सफर में उसने कारनामा अंजाम दिया था, शायद वो कोई तरीका ढूंढ ले। अच्छा याद दिलाया तुमने नसू अफंदी। आका, बहुत ही कलील वक्त में उसने 3 अदद जहाज तैयार किए थे। हमने वान दरिया उसकी वजह से पार किया था। मरहूम इब्राहिम पाशा ने उसे मेमार के मनसब पे तैनात फरमाया था। अगर आप चाहें तो ये काम हम उसे सौंप देते हैं। कौन है वो आदमी? क्या वो पुल बना सकता है? सुबह बखैर। पाशा मोहतरम, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, और ये सब क्या है? आपको तो मालूम ही होगा कि हम अब तक एक पुल नहीं बना सके। अगर आप चाहें तो मैं मार साहब को एक मशवरा देना चाहूंगा। ये अच्छी बात है। हम तुमसे पुल के मुतालिक ही बात करने आए थे। वान के दरिया पे तुम्हारा वो काम आज तक याद है। कोई रास्ता निकालो ताकि हम इस नहर को पार कर सकें। एक रास्ता है पाशा, हफ्ता 10 दिन लगेंगे। चाहे तो तफसील बता दूं। अगर नहर की रुको 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 रुको, हमें नहीं, ये सब तफसील आका को बताना तुम। आका को? तारीफ के साथ तुम्हारा जिक्र किया है, हमें शर्मिंदा मत कर देना। चलो आओ। मालकोचू, तुम इस इलाके के बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। कोई और मुनासिब रास्ता नहीं है? मजीद 1-2 मकामात हैं आका, लेकिन बेपनाह बारिशों ने हर जगह को कीचड़ में तब्दील कर दिया है।
ہر جگہ سے اسی صورتحال کا سامنا ہوگا. میرے آقا، آپ سے جس کا تذکرہ ہوا تھا وہ معمار، میرے آقا، یہ خود بھی پل بنانے کے متعلق سوچ بچار میں مصروف تھا. 1 ہفتے میں تعمیر کے لیے کہہ رہا ہے. 10-15 روز لگیں گے، کیونکہ کام کے ساتھ موسم کا حساب رکھنا بھی مشروط ہے. آقا معذرت چاہتا ہوں. معمار صاحب نے کہا ہے کہ 1 مہینے سے پہلے وہ پل نہیں بنا سکتے. تم کس سبب بھروسے سے یہ بات کر رہے ہو؟ آقا، میں اگر آپ اجازت دیں تو تفصیل سے وضاحت کرتا ہوں. میرے آقا، یہ ہے وہ ہماری نہر. آپ کو تو معلوم ہی ہے اطراف کی زمین دلدلی ہے اور نہر بہت پتھریلی ہے. اس سبب سے پل کو سنبھالنے کے لیے اس نہر کے دونوں اطراف بہت زیادہ مضبوط ستون درکار ہوں گے. اب ان ستونوں کو مضبوطی کے ساتھ زمین پر بنانے کے بعد پل کا وزن اٹھانے والے لکڑی کے ٹکڑوں کو رسی کے ساتھ ایک دوسرے سے قریب کر کے آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا جائے. اب اس کے اوپر سے ایک پہاڑ بھی گزر جائے تو اس پل کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے گا اور ہم اس پار سلامتی سے جا سکتے ہیں. پانی کی رفتار بھول گئے کیا؟ بہاؤ بہت تیز ہے پانی کا. آپ نے سچ کہا معمار محترم. اسی وجہ سے پانی کی رفتار کو کم کرنے کا سوچا ہوگا میرے آقا. اگر نہر کے کناروں کو اس طرح سے مزید پھیلایا جائے تو پانی کی رفتار کو مزید کم کیا جا سکتا ہے اور بہت آرام سے سامنے کے کنارے پر جا سکتے ہیں میرے آقا. نام کیا ہے تمہارا؟ سنان، کیسری اغرناس کا سنان. تمہیں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں سنان. اگر جیسا تم کہتے ہو پل کو مکمل کر کے لشکر دوسری طرف منتقل کروا دو گے تو پھر اس وقت تمہارے دل میں جو خواہش ہے مجھے بتا دینا. دوسری صورت میں میں تمہارا سر کٹوا دوں گا اغرناس کے سنان. ملکہ آئیے رافیل خاتون. خوش آمدید. شکریہ ملکہ. معذرت کہ میں اپنے کام کے سبب جنیوا گئی ہوئی تھی. کوئی بات نہیں، کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی. کیسی ہیں؟ آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں ملکہ. سنبل آغا نے صورتحال بتا دی ہے. آپ تو جانتی ہیں سفر جنگ کے دوران ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں. میں بخوبی جانتی ہوں ملکہ. بہت شکریہ رافیل خاتون.
ہمیں 50,000 اشرفیاں چاہیے. سفر کے خاتمے پر منافع کے ساتھ واپس کر دوں گی انشاءاللہ. آپ کا جو حکم ملکہ، لیکن آپ کی طلب زیادہ ہے. اسے پورا کرنے کے لیے کچھ دن کی مہلت درکار ہے. رافیل خاتون. نگار خاتون، تم یہی ہو اب تک؟ کبھی کبھی آ جاتی ہوں. معلوم ہے میں پاشا کی زوجہ ہوں. ہاں، مجھے سب معلومات پہنچتی رہتی ہیں. تم انتہائی خوش قسمت خاتون ہو. میرے ساتھ آؤ رافیل خاتون، شہزادی تمہارا انتظار کر رہی ہیں. مگر میں تو ان سے ملاقات کر چکی ہوں پہلے. خرم سلطان نہیں، شاہ سلطان تمہارا انتظار کر رہی ہیں. شہزادی، آپ سے ملنا میرے لیے باعث شرف ہے. تمہارا نام بہت سنا ہے رافیل خاتون. مرحومہ والدہ کے زمانے سے ہی حرم میں آ رہی ہو تم. درست ہے شہزادی، ملکاؤں کی خاص نوازش ہے مجھ پر، خاص طور پر حرم سلطان کی. ایسا ہی ہے نا؟ ان کی وجہ سے تمہاری دولت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اصول سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوا شہزادی. میں تو برسوں سے ایسے ہی. کتنا ادھار مانگا ہے تم سے؟ شہزادی کے سوال کا جواب دو خاتون. 50,000 اشرفیاں مانگی انہوں نے. کب تک تم مجھ سے یہ رقم ادا کرو گی؟ چند روز لگیں گے مجھے شہزادی، لیکن معذرت، آپ کیوں مجھ سے سوالات پوچھ رہی ہیں؟ سمجھا دوں گی خاتون، سمجھا دوں گی. لڑکیوں سب یکجا ہو جاؤ. لڑکیوں تم سب سے کہہ رہی ہوں. خیر تو ہے فاریہ خاتون، کیا ہمیں وظیفہ دوگی؟ کہاں ایسی قسمت؟ خاموش رہو خاتون. حرم سلطان نے بھیجا ہے مجھے. چند ہی روز میں تم سب کے وظیفے اضافے کے ساتھ تم لوگوں کو ادا کر دیے جائیں گے. اللہ ہمیشہ خوش رکھے ملکہ کو. حرم سلطان نے جو کہا پورا کر دیا. میں نے کہا تھا نا، حرم سلطان کو ہمارا خیال ہے. لشکر پروت نہر پر خیمہ زن ہے شہزادے. رریش کافر آج نہیں تو کل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. رریش کی کوئی اہمیت نہیں تشیع علی. خبروں کے مطابق آقا کو جان بوجھ کر اس طرف دھکیلا گیا ہے. آقا نے اقدامات کیے ہیں شہزادے. خضر خیر الدین پاشا اپنے بحری بیڑے کے ہمراہی غربوز کے سمندر میں لنگر انداز ہو گئے ہیں. ہمیں پائے تخت پر نظر رکھنی ہوگی تشیع علی. کسی حملے کی صورت میں ہوشیار رہنا ہوگا. اس لیے سپاہ کو تیار رکھو. مقابلہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کا جو حکم شہزادے. یہ گبریالہ کی سواری ہے. شہزادے محترم، آپ اب تک یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کئی بار پیغام بھیجا میں نے. خدا را مجھے اجازت دیجیے. محنت کرتی ہوں، میری بات سن لیجیے. جو کہیں گی جانتا ہوں. رومیسا میری بہن ہے. میرا خیال تھا مجھ پر یقین کریں گے. خدا را میری مدد. آپ مجھ سے خفا ہیں، میں جانتی ہوں. آپ حق پر ہیں. میں نے آپ سے دروغ کوئی کی، لیکن مجھے سمجھنے کی کوشش کریں شہزادے. آپ کی بھی بہنیں ہیں. برسوں بعد اس کے ملنے پر اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی میں. رومیسا خاتون، ساتھ آؤ میرے.
गिब्रेला जाहिर है हमसे कुछ छुपा रही थी। अब उसकी तकलीफ का इल्म हुआ। उसकी तकलीफ यही थी, बहन को हासिल करने के लिए मेरी मिन्नतें कर रही थी। ये मुमकिन नहीं है मुस्तफा, क्योंकि वो अब तुम्हारे हरम में है। लुक्रेसिया, मेरी बहन। मैं आपको नहीं जानती, मुझे क्या मालूम आप मेरी बहन हैं। ऐसा ही निशान तुम्हारे हाथ पर भी है ना? लुक्रेसिया, मेरी प्यारी बहन, आखिर तो मुझे मिल गई। आज के बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। डरो नहीं, शहजादे को खबर है तुम मेरे साथ चलोगी। आज के बाद अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी गुजारोगी। फैसला रोमैसा पर छोड़ दिया है वालिदा। वो चाहेगी तो उसे आजाद कर दूंगा, जैसे उसकी मर्जी। आखिर क्या जरूरत पेश आ गई मुस्तफा? एक कनीज को ये हक कैसे दे सकते हो तुम? दूसरी कनीजों को मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे? निजाम बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। मैंने यही मुनासिब समझा वालिदा। शहजादे, मलिका। रोमैसा खातून, लगता है तुम अलविदा कहने आई हो। आपकी शुक्रगुजार हूँ शहजादे, आपने बहुत नवाजिश की मुझ पर। तुम्हारे रास्ते आसान हो खातून। शहजादे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ आपके पास रहना चाहती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम जाना नहीं चाहती? सिनियरा ने तुम्हें बताया कि मैंने फैसला तुम पर छोड़ दिया है। उन्होंने बताया है शहजादे, लेकिन क्या खातून, तुम आजाद रहोगी। तुम्हारा घर और अहले खाना मौजूद है। एक अमीर खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। मेरा घर अब यही है शहजादे। मेरे अहले खाना आप लोग हैं। मैं यहाँ आपके पास रहने पर बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से भी शिकायत नहीं कोई। खुदारा मुझे ना भेजें, यही रहने दे। आका, बिलाखिर पुल मुकम्मल हो गया। आज 10वां दिन है। उस पार जाने के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। आखिर नास के सिनान कहाँ है? इसकी मजबूती को परख लिया क्या? लश्कर की मुंतकली के दौरान टूटेगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। इसकी मजबूती परखी जा चुकी है आका। ये जमीन की तरह मजबूत है अल्लाह के हुक्म से। हाला, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हारी महारत काबिल तारीफ है। मांगो मुझसे जो भी मांगना चाहते हो। आप जैसे इस जहां के सुल्तान ने मेरी तारीफ कर दी। मैं कुछ और नहीं चाहता आका। इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। लुत्फो बादशाह, इस बात पर तुम तवज्जो दो। आपका जो हुक्म आका। मालकोचू,
उसरेफ पाशा तैयारी करो जाने की, उस पार चलना है। पाशा मोहतरम। कहो रईस। खबरें अच्छी नहीं है पाशा। ईसाई बहरिया प्रीवेज बंदरगाह पर सरगर्म अमल है। आखिरकार जुर्रत दिखा दी उन्होंने। उनकी सरबराही कौन कर रहा है? आंद्रे दोरिया। मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है, कम से कम दुश्मन का शजर नसब तो मालूम हुआ। फौरन तैयारी शुरू करो तुर्गत रईस। बहरी कुमक के साथ तुम रवाना हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। आका को भी सूरत हाल से आगाह करो। आपका जो हुक्म। बारबरोस प्रीवेज को बचाने की खातिर लाजमन यहाँ आएगा। आंद्रे दोरिया, हमें तुर्कों पर खुले समंदर में हमला कर देना चाहिए। हमारे अजीम बहरी बेड़े के सामने उनका ठहर जाना नामुमकिन नहीं। कोई जरूरत नहीं इसकी, उनको प्रीवेज की खलीज की जानिब खींच कर लाएंगे। अगर खलीज की तरफ बढ़ेंगे तो हम कभी भी नहीं निकल सकेंगे वहाँ से। तुम फिक्र ना करो इसकी, हम वहाँ से निकलना जानते हैं। मौसम हस्बे मंशा है, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। तुर्कों के बहरी बेड़े बागबानी नहीं है। हवा के रुख पर चलने वाले हमारे बागबानी जहाजों के सामने वो ठहर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हवा रुक गई तो फिर हम अपने जहाजों को नहीं बचा सकेंगे। इस मौसम में यहाँ समुद्रों में हवाएं नहीं रुकती, जिसका हमें फायदा होगा। मैं जैसा कहूँ उसी पर अमल होना चाहिए, जैसा कि मुआहदे की शराइत से जाहिर है। इस बार बारबरोस को आने तो जरा, उसे और रईसों को बर्बाद करके रख दूंगा। और तुम ये देखोगे कि बहुत जल्द हम तमाम बोहिराए रोम में ईसाई झंडे लहराएंगे। मलिका, राफेल खातून की तरफ से पैगाम आ गया है मलिका। अशरफियां तैयार हो गई हैं। आला, मैं चाहती हूँ कि तुम फौरन जाओ और अशरफियां लेकर आ जाओ। आप फिक्र न करें मलिका। आने में देर कर दी। राफेल खातून की कोई खबर है क्या? जी हाँ शहजादी, सोना आज उनके हवाले किया जाएगा। राफेल खातून, कसम से मलिका आपके बहुत ममनून हैं। उन्हें सुम्बुल आगा मेरा सलाम कहिएगा। उनकी खिदमत करना मेरे लिए बाइस शर्फ है। ठीक है राफेल खातून, अब चलता हूँ मैं, इजाजत दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया मेरी हिफाजत करना, दो जानिब से आग में हूँ। आओ। शहजादी। हाँ कहो। आपकी गोश्त गुजार करने के लिए एक अहम मसला है। तुम जा सकती हो। क्या हुआ, क्या मसला है? सहन में कनीजों के पास एक मकतूब है शहजादी, उनके दरमियान गर्दिश कर रहा है, क्योंकि वो मकतूब बाली साहब ने आपके लिए लिखा था। ठीक है, तुम जाओ।
शहजादी, यकीन खातिर रखे मैं आपका दिल तोड़ना हरगिज नहीं चाहता और इसी वजह से मैंने खामोशी को तरजीह दी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी खामोशी आपके लिए गलत फहमी का सबब बन रही है। आपको मेरे नाम से किसने मकतूब लिखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस मकतूब में मेरी जानिब से जो बात कही गई वो हकीकत पर मबनी थी। मैं आका और इस खानदान के सिपाहियों में से एक वफादार सिपाही हूँ। तमाम जिंदगी यही मेरा फर्ज है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। कतन मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा और देखना भी मुमकिन नहीं। हो सके तो मुझे माफ फरमाइएगा। उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगी। माल कोचो बाली साहब। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये कहाँ से मिला तुम्हें, बताओ। शहजादी मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मकतूब मेरे तकिए के नीचे से मिला। अस्मा खान, वहीं रुक जाओ मलाउन। मेरे अल्लाह मुझे बचा ले इंसान। न जाने कहाँ रह गया संबल। मैं भी फिक्रमंद हूँ मलिका। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आ गई हो फारिहा। कैसी मुसीबत मलिका? मुहाफिज उनके हमरा हैं। ए खुदा तू मेरी मदद फरमा। मैं क्या करूँगा, क्या कहूँगा मलिका से? आगा, हमारा वजीफा तैयार है क्या? फारिया काल्फा ने बताया था कि आज मिल जाएगा। ओहो हटो सामने से खवातीन। बकरी को अपनी जान की फिक्र है और कसाब को अपने गोश्त की परवाह। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जाकर देखो उसे फारिहा, क्या हुआ मालूम करो। आपका जो हुक्म मलिका। हटो सामने से। कयामत कयामत मलिका कयामत। वल्लाह मेरी कोई खता नहीं इसमें। एकदम हमला हो गया, अपनी जान मुश्किल से बचा सका हूँ मैं मलिका। क्या कहा? बताओ मुझे आखिर क्या हुआ है? डाकुओं ने रास्ता रोक लिया था मलिका। सारी अशरफियां लेकर फरार हो गए वो। मुझे तो लगता है कि हमारा वजीफा नहीं मिलेगा। क्या हुआ? सुंबुल आगा आए थे कुछ देर पहले। मैंने वजीफे का पूछा तो मुझे डांट दिया। ये नाइंसाफी है हमारे साथ। क्या कह रही हो तुम? सुंबुल आगा से पूछा लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हो गए हैं, एक अशरफी तक नहीं मिली। तुम ऐसे नहीं बोलो। लड़कियों को जरूर। तुम सब यहाँ शोर क्यों मचा रही हो? हफ्तों से अशरफियों का इंतजार करें। हमें वजीफे का बोला गया था। सब खामोश हो जाओ। नहीं मिला। तुम ये हमारे साथ नाइंसाफी है। और जिंदान में डलवा दूंगा अगर ये शोर न बंद हुआ तो। खामोश हो जाओ। शाह सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। अफीफा खातून। फरमाइए शहजादी। इतने मुहाफिज मैंने रवाना किए थे तुम्हारे साथ। ये कैसे हो सकता है कि वो हिफाजत ना कर सके? मलिका कसम से मेरी कोई गलती नहीं इसमें। लगता है मुखबरी हुई है। उन्हें हमारे वहाँ से गुजरने का इल्म होगा। वो बहुत सारे आदमी थे, वरना उन आदमियों। खामोश हो जाओ तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। इतना बड़ा नुकसान हो गया और मैं कर्जदार भी हो गई।
मलिका। फारिहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? फौरन मुस्तफा पाशा को यहाँ आने का कहो। शाह सुल्तान आई है मलिका, सोचा उनकी आमद की खबर दे दूं, वो सहन में है। अल्लाह आपको खुश रखे शहजादी। शाह सुल्तान, रब आपकी हमेशा हिफाजत करे। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। मेहरमा, क्या हुआ अस्मा खान? तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? नहीं, मगर अच्छा लगा आना तुम्हारा। मेरा लिबास कैसा है, पसंद आया तुम्हें? ये क्या किया तुमने? वो मकतूब कनीजों के हवाले कर दिया। रद्द किए जाने से कितना रंज होता है। इससे पहले सिर्फ मैं ही जानती थी इस बात को, लेकिन अब हर कोई जान गया है। सारा हरम गूंज रहा है। हर कोई जान गया, दुरुस्त है, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो अस्मा खान। मालकोची और तुम्हारी खबरें गर्दिश में थी, मेरी नहीं। हर कोई समझ रहा है कि तुमने लिखा है वो मकतूब। किसी का जहन मेरी तरफ नहीं गया। आका और इस खानदान के सिपाहियों में से एक वफादार सिपाही हूँ। कतल मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। अस्मा खान के मकतूब का यहाँ क्या काम? मुझे कुछ मालूम नहीं शहजादी। तुम बग्गी तैयार करवाओ, मैं उसके पास जाऊंगी। तुम सब ये सुन लो, ये अस्मा खान का जाती मसला है, इसे यूं नहीं उछालना चाहिए। ये तुमने क्या कर दिया अस्मा खान? तुम अपनी नाक़िस अकल से ऐसा खेल कैसे खेल सकती हो? मुझे सख्त हैरत हुई तुम पर। चली जाओ यहाँ से, फौरन चली जाओ यहाँ से। तुम खुद को मुझसे दूर रखो तो बेहतर है। आइंदा कभी मेरे रास्ते में आई तो तुम्हें ऐसा रुस्वा करूंगी कि लोगों के सामने भी नहीं आ सकोगी। समझ गई तुम? बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। हुरम, शहजादी, यहाँ क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? मुझे भी आगाह किया जाए। क्या लग रहा है हुरम? कनीजों को वजीफे की अदायगी की जा रही है। अफीफा खातून, ऐसा कब से होने लगा कि मुझे बगैर बताए कनीजों में वजीफा तकसीम हो रहा है? मलिका, मैं चाहती थी हुरम, अपने खर्च से दे रही हूँ। जो आपका काम नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करें शहजादी, क्योंकि इस हरम को मैं चला रही हूँ। यही कहते हैं कवानीन और उसूल। कोई भी शख्स, चाहे शहजादी भी क्यों ना हो, किसी को भी हरम का निजाम खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। कनीजों तक एक अशरफी भी नहीं पहुंच रही है और तुम मुझसे निजाम की बात कर रही हो। क्या तुम इस तरह चलाओगी हरम को हुरम? तुर्क खानदान आलिया का ये हाल हो गया है क्या? मुझे आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं। अफीफा खातून, जिसे भी अदायगी हुई है उससे वापस ले ली जाए। हर काम करने का एक वक्त होता है और कुछ उसूल होते हैं। इन सब का वजीफा सिर्फ मेरे हुक्म से, मेरी जानिब से दिया जाएगा। ऐसे खड़ी क्या देख रही हो? मलिका ने क्या हुक्म दिया सुना नहीं? जिसने जो भी लिया है वापस करे फौरन। अफीफा खातून, माजरत चाहती हूँ शहजादी,
लेकिन हुरम सुल्तान बचा फरमा रही हैं। इनके हुक्म के बगैर कतन वजीफे की अदायगी नहीं की जा सकती। मैं तो ये समझ रही थी कि आपने मलिका को इस बारे में आगाह किया होगा। मैं इन सबको मजबूर और परेशान देखकर मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है कि हुरम का बेसबब गुरूर इसमें रुकावट बन गया है। ठीक है, मरजान आगा, अशरफियां जमा करके महल भिजवा दो, और कनीजो तुम सब दुआ करो हुरम सुल्तान तुम्हारा वजीफा जल्द अज जल्द अदा कर दें। किरम से ताल्लुक रखने वाले साहिब गिराई खान अलीशान तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद साहिब गिराई। मरहुमा वालिदा की मुमलिकत में क्या सूरत हाल है? शुक्रिया आका, आपके जेरे साया सब कुछ बेहतर है। पेट्रो ररेश नाम के गद्दार को तलाश कर लिया है क्या? आका, वो गद्दार फरार हो गया अर्दल की तरफ। सिपाही इस्लाम के पहुंचने से कबल ही वो निकल गया। कोशिश के बावजूद ररेश गिरफ्तार ना हो सका। वो ररेश नाम का गाफिल गजब शाही से किसी सूरत नहीं बच सकेगा, वो ये जान ले। तातारी कुव्वतें अर्दल के इतराफ में घूम रही हैं मेरे आका। जैसे ही वो कहीं बाहर निकलेगा हमारे हाथ लग जाएगा। यकीनन उसने हमारे खौफ से पनाह ले रखी होगी। ररेश की मदद करने वाले बोयर की क्या सूरत हाल है? याज शहर को जलाकर वायदा की मदद करने वालों को सजा दे दी गई। फिर भी मोहतात रहो। शाकलेन और पोप के साथ बोहरा रोम में मुकाबला करते हुए उस इलाके की फिक्र न रहे। उस सरजमीन की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द है। तातारी इसी तरह हमारे दुश्मनों को सांस लेने की भी मोहलत न दें। मेरे आका, आप इस सरजमीन की बिल्कुल फिक्र ना करें। तातारी इस अजीम तुर्क सल्तनत की और दीन मुबीन इस्लाम की अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए हमेशा खिदमत जारी रखेंगे। खजर खैरुद्दीन पाशा। आओ साले रईस। ऐसा लगता है कि आंद्रे दोरिया हमारे आने का सुनकर प्रीवेस की बंदरगाह पर हमलावर होकर भाग गया। वक्त से पहले खिलने वाले फूल बाहर नहीं देखते रईस। आंद्रे दोरिया का इतनी जल्दी भाग जाना खैर की अलामत नहीं। कोई साजिश है क्या ये? इतनी सारी हुकूमतें, इतने सारे शहजादे सब यकजा होकर नहीं बैठ सकते। खुफिया तौर पर तहकीकात की जाए। ईसाई बहरिया यकीनन यहीं कहीं छुपी होगी। खुले समंदर में इंतजार खतरनाक होगा। हुक्म दे दो बंदरगाह की तरफ चलें। तुम पहले साहिलों पर इकदामात करो, फिर हम जाएंगे। कमांडर आंद्रे दोरिया, बारबरोस के पहुंचने की खबर मिल गई है हमें। वो प्रीवियस के करीब है। अमीरुल बहर साहब, जिस मौके की तलाश थी वो खुद हमारे करीब आ गया। तुर्क बहरी बेड़े का बंदरगाह से पहले क्यों ना इस्तकबाल कर ले हम लोग। इतनी उजलत की क्या जरूरत है? कहते हैं कि तेज होने वाली बारिश जल्द थम जाती है। तुर्कों का बहरी बेड़ा प्रीवेस को बचाने के लिए आया है। उसे बंदरगाह में दाखिल होने दो। इस तरह फरार का रास्ता नहीं मिलेगा उसे। हवा हमारे मवाफिक है तो ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। और ये कि बादबानी जहाज तुर्कों के जहाजों को बर्बाद करते हुए गुजर जाएंगे। इस बारे में पहले भी हमारी बात हो चुकी है। एक बार हमारा दुश्मन प्रीवेस की खलीज में आकर फंस जाए, फिर उसका खात्मा करेंगे। अमीरुल बहर, आप इस सुनहरी मौके को जाया कर रहे हैं। हमारे जहाज बहुत बड़े हैं, वो परिवेश के खलीज में अंदर तक दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हें मेरे फैसलों पर बहस करने का बजाय इस पर अमल करने की जरूरत है, समझ गए? ये बात ज़हननशीन कर लो। इसके बाद ही ईसा के सिपाहियों को तारीखी फतह हासिल होगी। प्रीवेस पर हमला करने वाले तमाम जहाजों को खबर पहुंचा दी जाए। पीछे हट रहे हैं हम लोग। ररेश के बरादर स्टीफन को खबर भेज दी गई है आका। जल्द अज जल्द आकर आपके मुबारक कदमों में अपना सर रख देगा। आला, तुम क्या कहते हो साहिब गिराई? ये स्टीफन अपने भाई की तरह कहीं गद्दारी तो नहीं करेगा? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता आका।
इसलिए कि गद्दारी करने वाले का अंजाम सबके सामने है। लेकिन आका, खिजर खैरुद्दीन पाशा से मिलने वाली खबरें अच्छी नहीं हैं। सलीबी बेड़े परवेज की बंदरगाह पर हमलावर हो चुके हैं। पाशा मोहतरम, आप इत्मीनान रखें। खिजर खैरुद्दीन पाशा वहां से रवाना हो चुके हैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही खैरियत की खबर मौसूल होगी। अल्लाह खिजर खैरुद्दीन पाशा की मदद करे लुत्फो पाशा, क्योंकि शिकस्त हो या फतह वो बहुत बड़ी होगी। मेरे आका। अमाल कोचू। मेरे आका, मैं जासूसों की निगरानी में मसरूफ था, लेकिन आते हुए एक पादरी ने रास्ता रोक लिया। उसके कहने के मुताबिक हमारे बाद सिपाही आवाम के जानो माल पर हमलावर हो रहे हैं। क्या पादरी की बात में सदाकत है? हम फौरन पादरी के बताए हुए मकाम पर पहुंचे, लेकिन अफसोस कि वो अपनी शिकायत में सच्चा था। एक सिपाही ने भेड़ों को छीन लिया, दूसरे सिपाही ने जबरदस्ती मकई की सारी फसल छीन ली। उन दोनों को सबूत के साथ लाया। रियाया हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है। हम कई मर्तबा ये फरमान जारी कर चुके हैं कि अवाम पर जुल्म न किया जाए और मालिक की इजाजत के बगैर किसी का माल जब्त न किया जाए। मुतादिद मकामात पर लश्करगाह में ऐलान भी करवाया गया। दोनों के सर काट दिए जाएं सबके सामने, ताकि हर किसी को इबरत हो जाए। जो हुक्म आका। रियाया की जान और माल पर हमला करना, माल पर मालिक की इजाजत के बगैर कब्जा करना। शहजादे, आप ठीक तो हैं? आप फिक्र मत करें पाशा, मैं ठीक हूँ। आला, सीधे खड़े रहें, कतन नजर ना हटाइएगा आप अपनी। आका, पाए तख्त से कासिद आया है। खुरम सुल्तान की जानिब से आया है ये मकतूब। शहजादे, आप ठीक हैं? तखलिया चाहता हूं मैं। मैं जब आपकी उम्र का था, खून देखने की ताब नहीं थी मुझ में, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हर चीज की आदत पड़ जाती है। मेरी मदद करें रुस्तम पाशा, मैं लायक शहजादा बनना चाहता हूँ आका का। बिल्कुल आप लायक हैं शहजादे। लेकिन आप इत्मीनान रखें, आज के बाद आपके हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। चलें अपना मुंह धो लें हम। आइए। मेरे शहंशाह मोहतरम, काश मैं उस सरजमीन पर सजदा रेज़ होती और उसकी मिट्टी को चूमती जहां आपके कदम मौजूद हैं। ऐ मेरे आफताब, मेरी खुशियों की दौलत, मेरे शहंशाह, मुझसे मेरा हाल मत पूछें। मेरा दिल तार तार है, आंखें अश्क बार हैं,
मेरी दुनिया के लैलो निहार में कोई फर्क नहीं रहा। मैं तन्हाई में अपने दिलो जान की दीवानगी से बेजार हूँ। मेरा हाल उस लैला जैसा है जो मजनू के फिराक में जां बलब है, बुलबुल की तरह। मेरा दर्द भी थमा नहीं, आपकी अदम मौजूदगी का अजाब रुका नहीं। अल्लाह किसी और को इस अजाब में मुब्तला ना करे। मेरी खुशी, मेरे शहंशाह, लैलो निहार आपकी खबर के बगैर गुजर रहे हैं। मेरा दिल सरे शाम से तुलुए सुबह तक और तुलुए सुबह से सरे शाम तक बैन करता रहता है। मेरी निगाहों को कोई मंजर अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती सुकून कैसे मिलेगा। मैं परवरदिगार से आपकी जल्द वापसी के लिए दुआ को हूँ, ताकि आपको दोबारा देख सकूं, ताकि आपके कदमों पर जमी धूल को चूम सकूं, दोबारा आपका दीदार कर सकूं, मिल सकूं आपसे। मेरे शहंशाह, बराए मेहरबानी जवाबी मकतूब जल्द इरसाल कीजिएगा। अगर नामा आने में 2 हफ्ते की भी ताखीर हुई तो लोग अफवाहों से मेरा जीना महाल कर देंगे। मैं चाहती हूँ उनकी जहर अफशानी से पहले आपका नामा मौसूल हो जाए। महमद और सलीम को मेरी जानिब से प्यार। बयाज़त, जहांगीर और महरमा आप सबको याद करते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। खुदा आपको मेरी दुआओं के हिसार में सलामत रखे, आमीन। अल्लाह रब्बे करीम मेरी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. मलिका। राफेल खातून, अच्छा हुआ आप आ गई। माजरत मलिका, आपको आगाह किया था कि बहुत से काम है मुझे। आपसे जो अशरफियां मंगवाई थी यहाँ लाते हुए लूट लिया गया उन्हें। खबर तो मिल गई होगी। सुंबुल आगा को समझाया था, मुझे बहुत दुख हुआ। हादसे के दूसरे दिन सुंबुल को आपकी हवेली भेजा था। मालूम हुआ कि आप फिर से जिनेवा गई हुई हैं। काम की वजह से अक्सर जाना पड़ता है मुझे मलिका। और वैसे भी सुंबुल आगा को बताया था मैंने जाने का। क्यों बताया था ना? आपने तो 1 हफ्ते बाद जाने का कहा था राफेल खातून। मैंने देखे एक पुराने दोस्त हैं, उनका जहाज जा रहा था। मैंने सोचा उनके साथ चली जाऊं। क्यों, क्या हो गया मलिका? अशरफियां जिसने भी लूटी हैं उसे पहले से मालूमात फराहम करती गई थी। क्या अपनी हवेली के मुलाजमीन पर पूरा भरोसा है आपको? उनमें से किसी ने हो सकता है मुखबिरी की हो इस बात की। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ मलिका। वैसे भी मैंने तदबीर के तौर पे आपका नाम खुफिया रखा था। लगता है कि हरम में किसी ने बता दिया होगा। कतन नहीं हो सकता, कोई नहीं जानता था मेरे अलावा। हाय अल्लाह, क्या मालूम शायद आपका किसी ने पीछे किया हो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? नामुमकिन। किसने किया था ये तो पता चली जाएगा, लेकिन मसला ये नहीं है अभी। राफेल खातून, मुझे दोबारा अशरफियों की जरूरत है, इसलिए कि अब तक कनीसों को वजीफा नहीं दिया जा सका है। सबकी सब बेहद परेशान हैं। आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर आप चाहें तो मैं अपनी जान भी दे दूं मलिका, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पास अशरफियां नहीं है। लड़कियों तुमसे कुछ करना सुबह लगा से भी पूछा, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें मलिका से बात करनी ही होगी। तुम लोग को क्या नतीजे निकले? क्या हो रहा है यहाँ? कल पा गई। फारिया काल्फा, मैं हुरम सुल्तान से बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है खातून? अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। सूरत हाल बुरी है फारिया काल्फा, किसी के पास एक अशरफी भी नहीं है। तुम्हारी जबान काट दूंगी। तुम होती कौन हो इतनी अजीम मलिका से शिकायत करने वाली? कितने दिन गुजर गए लेकिन हुरम सुल्तान ने कोई बात नहीं की। शाह सुल्तान वजीफा दे रही थी लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। खामोश हो जाओ, मजीद कुछ मत कहना, वरना तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगी।
मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ राफेल खातून। हर किसी से कर्जा नहीं ले सकती मैं। तो फिर मैं आपको अपनी बहुत ही करीबी दोस्त का मशवरा दे सकती हूँ मलिका। वेनेडिक्ट के खास ताजिरों में से एक हैं और काफी साहिब हैसियत खातून हैं वो। अगर आप चाहें तो आपके लिए उनसे बात कर सकती हूँ मैं। वो जो आपके साथ जेनेवा जाने वाली खातून थी, क्या वो ही? हाँ बिल्कुल वही खातून। उससे बात करो। मैं फौरन उनके पास जाऊंगी, आपको जल्द खबर करती हूँ। मलिका, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानती हैं, लेकिन वेनेडिक्ट की ताजिर से कर्ज लेना मुनासिब नहीं होगा। मालूम है वेनेडिक्ट के साथ हम बरसरे पैकार हैं। माज़अल्लाह आका को इल्म हो गया तो मारे जाएंगे। आका की आमद से पहले कर्ज उतार दूंगी, और वैसे भी ये बात खुफिया रखनी होगी, किसी को भी मालूम ना होने पाए। मलिका मगर सुम्बुल आका, मैं मजबूर हूँ। जितना जल्द हो सके वजीफे की अदायगी हो जानी चाहिए। शाह सुल्तान इस इंतजार में है कि मेरी कोई गलती उसके हाथ लग जाए, और उसको मैं ये मौका नहीं दे सकती। वो तो ठीक है मलिका, लेकिन आपका कर्ज पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। आका की आमद से पहले कैसे उतारेंगी? एक काम करो सुम्बुल, मेरी सबसे जरखेज जमीनों को फरोख्त कर दो, उस रकम से कर्जा उतारूंगी मैं। मलिका, जैसा आपका हुक्म। तुम अब तक इस इंतजार में हो, मैं समझ नहीं सकी। गुलफाम के मुताबिक हरम में एक हंगामा खड़ा हो गया है। कनीज़ें आज शक्ल एहतजाज करेंगी। तुम बरसों से इंतजार कर रही हो, कुछ और सब्र करो। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता तुम्हें। इस तरह कनीज़ें बगावत पर उतर आएंगी, हुरम के सर पर किसी और को मुसल्लत कर देंगे। जान से जाएगी वो। इस तरह किसी बात का इल्जाम नहीं आएगा हम पर। हुरम ये सब नहीं सोच रही, तुम्हारा क्या ख्याल है? हर तरह की तदबीर कर ली होगी उसने, और हुरम की हालत को मुर्दों से बदतर बना दूंगी। शहजादी, सारा खातून आई है। उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। खजीना, कौन है ये सारा खातून? वो एक बहुत अच्छी हाफिजा है। दुआ करवाने के लिए बुलवाया है उन्हें। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है खातून। तुम्हारी करामतों का जिक्र कर रहा है हर कोई। मुबालिगा आराई है शहजादी। मैंने सुना है कि तुम खोए हुओं को मिलाती हो, इंसानों की परेशानियां खत्म कर देती हो। अल्लाह की रजा हो तो शहजादी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मरहूम इब्राहिम पाशा की कब्र तलाश करवाना चाहती हूँ सारा खातून। कहाँ दफन किया है मैं जानना चाहती हूँ। 2 बरस बीत गए, शायद इससे भी ज्यादा, मालूम नहीं। न रात रात रही, न दिन दिन रहा। कुछ नहीं तो उस मिट्टी को चेहरे से लगाकर मैं दुआ करना चाहती हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं शहजादी, उसे सिर्फ आप ही तलाश कर सकती हैं। कैसे? नींद के जरिए शहजादी। ये दुआ पढ़ते हुए आंखें बंद करनी होंगी। अगर आपके चेहरे पर कोई रोशनी हुई तो रोशनी के पीछे एक खातून भी आएगी, उससे डरिएगा नहीं। वो आपको अपने साथ लेकर जहां भी आप जाती हैं ले जाएगी। वालिदा, आप आका को खबर क्यों नहीं भेज रही? मुझे डर है कि परेशानी बढ़ ना जाए। सफर के दौरान उन्हें ऐसे मसलों में कैसे उलझा सकते हैं? और वैसे भी मैंने एक हल ढूंढ लिया है, जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा। मलिका, वहीं रुको खातून, सहन में जाओ फौरन। फारिहा, क्या हुआ है? मलिका,
हम कब से आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फारिया खातून हमें आपके पास नहीं आने देती। मसला क्या है? बास खवातीन कहती फिर रही हैं मलिका कि उनके मुताबिक आपकी खिदमत में होने वाली कनीजों को उनके वजीफे से ज्यादा अशरफियां दी जा चुकी हैं। हमारा गुनाह क्या है मलिका? हमें भी जरूरत है। मलिका, सबकी सूरत हाल एक जैसी है खातून। ऐसी अफवाहों पर एतबार ना करो वरना नुकसान उठाओगी। जाओ सहन में फौरन। माजरत, लेकिन अब हमसे और सब्र नहीं होता। अफीफा खातून, इन खवातीन को फौरन दुर्रे लगाए जाएं और इसके बाद इन सब को जिंदान में डाल दिया जाए। बगावत करने का नतीजा क्या होता है ये जान लें। आगा, इतना काफी है। ले जाओ, डाल दो इन्हें जिंदान में। आफरीन है निहाल खातून, तुमने अच्छा काम किया। शाह सुल्तान तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश है। आप सलामत रहें। अच्छा, अब क्या करना है? हमारा काम खत्म हो गया क्या? कहाँ खत्म हुआ खातून, अभी तो शुरुआत है। तुम इस आग को मजीद हवा देती रहना जब तक ये आग और ना फैल जाए। अल्लाह शाह सुल्तान को सलामत रखे। हमारी बहरिया की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर पुर्तगाली कज़ाक बोहरा रूम में आजादी से घूम रहे हैं शहजादे। खादिम सलमान के सफर हिंद पर रवाना होने के सबब मैदान बिल्कुल खाली हो गया है। हमारे जहाजों पर हमलावर होने के साथ हमारे साहिली शहरों पर भी बर्बादी फैला रहे हैं। ये नई बात नहीं, बरसों से इस परेशानी का सामना है, खास तौर पर अलानी और उसके आसपास। रियासतों के सूबेदार बेबस और लाचार हैं शहजादे। वो दिफा के बजाय पसपा हो रहे हैं। हमें कोई हल ढूंढना होगा। हल तो मौजूद है तश्शी अली। अलानिया का कारखाना जहाज साजी का, इसकी क्या मालूमात है तुम्हारे पास? काफी बरसों से वो कारखाना बंद है। आप क्यों पूछ रहे हैं? हम वो कारखाना दोबारा चलाएंगे तश्शी अली, क्योंकि इस इलाके में एक ताकतवर बहरी बेड़े का होना नागुजीर है। इस तरह इलाके में कज़ाकों की रोकथाम हो सकेगी और दूसरी तरफ दुश्मनों के जहाजों को अजम और हिंदुस्तान जाने से रोक सकेंगे। आप दुरुस्त फरमाते हैं शहजादे, लेकिन इस कीमती मशवरे से आका को आगाह करने की जरूरत है। आओ शहजादे, इजाजत दें। तमाम जरूरी इक़दामात करो तश्शी अली। अलानिया के कारखाने के लिए तमाम जरूरियात पूरी की जाए। मैं मकतूब के जरिए आका को मुत्तला कर देता हूँ। आपका जो हुक्म शहजादे। अगर और कुछ नहीं तो तुम जा सकते हो। पानी दो खातून। नरगिस शाह कैसी है? उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रही हो ना? मैं उसका पूरा ख्याल रख रही हूँ। शुक्र है अब उसकी सेहत अच्छी है। आला। आयशा, तुम खुश दिखाई नहीं दे रही हो। कोई परेशानी है क्या? हरगिज नहीं मलिका, मुझे कोई परेशानी नहीं। इजाजत दे मैं अपने कमरे में जाऊं। नरगिस शाह सुल्तान के खाने का वक्त हो गया है। फिदान, मुझे बताओ इसे क्या हुआ है? शहजादे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जुमेरात को भी इससे मुलाकात नहीं करते। कोई तो वजह जरूर होगी मुलाकात ना करने की फिदान।
आप बिल्कुल मुतमईन रहे मलिका, मैं सबब मालूम कर लूंगी. Başka bir cariye seçip yolluyorum. Öyle de aslanıma şehzade doğuracak bir hatun bulamadın hala. रुमैसा, हम शेरा गिब्रियला के पास जाकर आजाद और अमन पसंद जिंदगी के बजाय तुमने यहाँ रहने को तरजीह क्यों दी? आपको आगाह किया था शहजादे, मैं आपकी कनीज रहने पर बहुत खुश हूँ. मुझे इसका अंदाजा है खातून. फिर भी अगर कोई परेशानी है तो बताओ, तुम्हें आजाद करके भेज दूंगा हमशीरा के पास. अब मुमकिन नहीं शहजादे, मुझे सिर्फ मौत ही ले जा सकती है यहाँ से. इजाजत दें. तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेमत खातून की तबीयत ठीक नहीं, उनकी जगह आई थी. शहजादे को किसी चीज की जरूरत तो नहीं, ये पूछना था. जो तुम्हारा काम नहीं उसमें दखल क्यों दे रही हो? चलो जाओ, देखो मलिका का खाना तैयार हुआ कि नहीं. ठीक है, देखती हूँ. मुझसे मिनमिना कर बात मत करो. तुम्हारे अहले खाना कौन है, तुम कहाँ से आई हो, इसकी अहमियत नहीं है. यहाँ सब बराबर हैं. ये बात याद रखना, हम शहजादे मुस्तफा मोहतरम के गुलाम हैं. आप फिक्र मत करें, मैं अपने हाल पर खुश हूँ. जबान चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. क्या कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. जाओ अब. अस्मा खान. वालिदा, खजीना कहाँ है? वो अपने कमरे में होंगी वालिदा, शाम के खाने पर भी नहीं आई. उस पर नजर रखना दुख्तर, उसकी खामोशी अच्छी अलामत नहीं है. काश आप मेरे बारे में भी सोचें वालिदा. इसका क्या मतलब? हुरम सुल्तान मालकोचो से शादी के दरमियान रुकावट बन गई. क्या आप इस पर भी खामोश रहेंगी? हुरम का कोई ताल्लुक नहीं है अस्मा खान. आका ने ही ये मुनासिब नहीं समझा. कितना बुरा हाल है हमारा. हमारे हाल को क्या हुआ है? खवातीन, आगा सब आकर मुझसे अपनी तकालीफ का इजहार करते हैं. वजीफा नहीं मिल रहा है किसी को भी. एक तुम ही रह गए थे शिकायत करने के लिए. इतने बरसों से सब दुकानदारों को लूट रहे हो. तुम्हारे पास तो अशरफियां जरूर होंगी. गंजा अंधे से पूछे मेरा सर क्यों गंजा. इल्जाम लगाकर गुनाह सरजद ना करो. वैसे भी मरजान आगा की वजह से ऊपर की कमाई ही खत्म हो गई है.
कुछ नहीं तो गुजारा ही चल रहा था, अब वो भी खत्म। ओहो, क्यों लेते हो उस इब्लीस का नाम? वल्ला हर रात को ख्वाब में आ जाता है वो मेरे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ख्वाब पर याद आया मुझे। चलो अब मैं चलता हूँ। चलो मैं जाकर नींद कर लूं, कल बहुत काम है मुझे। कल कोई खास दिन है? अशरफियाँ मिलेंगी, अशरफियाँ। सबको वजीफा दिया जाएगा कल और 2 गुना ज्यादा मिलेगा। ओहो सुंबुल आगा, ये अब बता रहे हो तुम मुझे? तुम्हें छूऊंगा। चलो उठो बेशरम। हाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ, क्या हो रहा है? मलिका, मलिका। फारिहा, क्या हो गया? यहाँ क्या हो रहा है अफीफा खातून? मलिका, दरअसल कनीजों में से कनीज सरवी खातून सोते में किसी ने गर्दन काट दी है उसकी। ये खातून जिसे दुर्रे लगवाए थे और जिंदान में बंद करवाया था मलिका, वो खातून है। ये जिसने भी किया है फौरन तलाश करें उसे। वो जो कोई भी है उसे सजा दूंगी अपने हाथों से। लड़कियों, जिसे जो कुछ मालूम है वो सब बता दे। यकीनन तुम सब में से किसी ने देखा होगा कातिल को। कातिल जो कोई भी है, मुझे यकीन है इस वक्त हमारे दरमियान है। अफीफा खातून, हुक्म दीजिए मलिका। सुंबुल और मरजान के साथ मिलकर सबसे पूछताछ करें। अगर सुबह तक असल मुजरिम सामने नहीं आया तो इस सहन की तमाम कनीजों को महल बदर कर दिया जाएगा। सुन लिया तुम सबने कान खोलकर? आज रात कोई नहीं सोएगा। पहले हर तरफ अच्छी तरह तलाशी ली जाएगी। शुरू की जाए तलाशी। इब्राहिम की कब्र है।
है। खजीना, खजीना, तुम ठीक हो? पानी लाओ फौरन। खजीना ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। एक भयानक ख्वाब देखा। क्या हो गया मेरी जान? तुमने डरा दिया था मुझे। मलिका, तलाश कर लिया हमने कातिल को। ये खंजर बिस्तर के नीचे से बरामद हुआ। उस कातिल ने इसे छुपा दिया था वहाँ। कौन है वो? खातून। मलिका, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। पानी पीने के लिए जब उठी मैंने तब देखा सुंबुल आगा वहीं थे। चुप करो, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी बस। क्या मालूम मुझे देखते ही तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया हो। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैंने नहीं किया। मलिका, मेरा यकीन कीजिए। जानती हूँ खातून, लगता है तुम्हें कुर्बान किया जा रहा है। क्यों ऐसा ही है नाफीफा खातून? जी हाँ मलिका, बचा फरमा रही हैं आप। देख रही हैं ना आप मेरे खिलाफ कैसी साजिशें हो रही हैं। मलिका, खातून के लिए क्या हुक्म है? इस सूरत हाल में इसे फांसी देनी होगी। मलिका, मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। खुदारा मुझ पर रहम करे, ये जुल्म ना करे। घबराओ नहीं खातून, खामोशी से तीपैचक वाली जमीनों पर भिजवा दीजिए इसको और इसकी सब जरूरियात का ख्याल रखा जाए वहाँ।
लेकिन सब इसे मरा हुआ समझेंगे, ये याद रहे। लेकिन मलिका, अफीफा खातून आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। सब कुछ जानते बूझते हुए एक मासूम की जान नहीं ले सकती मैं। स्टेफन लाकोस्टा, याश शहर को अहले बुगदान के साथ मिलकर गद्दारी के बदले में जलाकर राख कर दिया। अगर अब भी अकल ठिकाने नहीं आई तो फिर आइंदा सुचावा और दूसरे शहरों का भी ऐसा ही हशर किया जाएगा। सुचावा महल के तहखाने से कब्जे में आने वाला सोना और जवाहरात तुर्कों के खजाने में जमा करवा दिए गए हैं। तुम्हारा भाई ररेश अर्दल से फरार हो गया है, लेकिन हम हर वक्त उसका ताक्कुब करते रहेंगे। हमारे साथ गद्दारी करने वाला सजावार ठहरता है, हमारी इताअत करने वाला हमारे दरबार की जानिब से इनाम का हकदार बनता है। स्टेफन, इस सबब से मैं तुम्हें बुगदान का सूबेदार तैनात करता हूं। स्टीफन गुलाम को आपने इख्तियार बख्श दिया आका। बोगदान मेरे अजीम आका के ज़ेरे साया है। आप जो हुक्म देंगे उसकी तामील की जाएगी। मेरे पाशाओं ने मुआहदा तैयार कर लिया। सूबेदार के तौर पर तुम्हें तैनात किया जा रहा है। लुत्फो पाशा, वोएवोदा की सरजमीन पर हमारी जानिब से 500 यनिचरों का एक दस्ता तैनात रहेगा। सूबेदार 2 बरसों में एक बार इस्तांबुल को जरूरी महसूलात अदा करके अपनी इताअत का यकीन दिलाएगा। वोएवोदा सूबेदार के तबाहशुदा किले की तामीर अकिरमान में असरनों की जाएगी। बगदान के साथ साथ जनूबी बेसरबिया और इसके साथ बेंदर किला और तमाम सरजमीन सल्तनत आलिया में शामिल की जा रही है। बुजेक की हुदूद में बगदान वाले अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते। वोएरावर, आसपास के इलाकों और वोएवोदा मुआहदे की तौसीक के अलावा सुल्तान सुलेमान की जानिब से बगदान वालों को आम माफी दी जाती है। पाशा मोहतरम, आपके हुक्म के मुताबिक खबर देना चाहता हूँ। ये मकतूब आका के लिए आए हैं। इस्तांबुल के मुहाफिज मुस्तफा पाशा ने सल्तनत के मसलों के मुतालिक मालूमात भिजवाई हैं। और दूसरा, शहजादे मुस्तफा मोहतरम का कासिद लाया है पाशा, लेकिन मौजू के मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी। तुम ये मुझे दो और वो ले जाओ। शहजादे, मलिका, तश्यली तैयारियों की क्या सूरत हाल है? आपके हुक्म के मुताबिक अलानिया कारखाने की मरम्मत के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो सब एक एक करके दर्ज कर ली गई है शहजादे। कौन सा कारखाना है ये? अलानिया में एक पुराना बंद कारखाना है वालिदा, उसे दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया है। आखिर इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? आका को खबर है क्या इसकी? मकतूब भिजवा दिया है उन्हें। तश्यली, सामान का फौरन बंदोबस्त करके इसे एलानिया पहुंचा दिया जाए। आका ने क्या रद्द अमल जाहिर किया? जरूर जवाब दिया होगा, क्यों है ना मुस्तफा? अभी तक आया नहीं जवाब। ये एक अहम फैसला है मुस्तफा। याद रखो, एक शहजादे का बहरी बीड़ा बनाना और उसे इस्तेमाल करना कतई ममनू है। ममनू नहीं है वालिदा, इसमें हर्ज भी नहीं कोई। ये बहरिया इलाके की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है। इसे सिर्फ वहां का सूबेदार इस्तेमाल कर सकेगा। शहजादे, मुझे इजाजत दें। तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूं। मुस्तफा, कुछ भी हो तुम आका के हुक्म का इंतजार करो। हुरम और उसकी खिदमत करने वाले पाशाओं ने तुम्हारे साथ जो साजिश की थी उसे हरगिज मत भूलो तुम। वालिदा, क्या मैं खौफज़दा रहकर जिंदगी गुजारूं? क्या मैं हर कदम पर यही सोचता रहूं कि वो लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे? क्या ये चाहती हैं आप अपनी औलाद से? क्या मुझे ये ज़ेब देता है? मुस्तफा, ये मत भूलें कि मैं इस्तांबुल के फातेह जन्नत मकाम मरहूम सुल्तान महमद का खून हूं। किसी के भी सामने और खास तौर पर
गद्दारों के सामने अपने घुटने टेक कर गर्दन नहीं झुका सकता हूं मैं कभी भी। चलता हूं मैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने हल ढूंढ लिया है। अशरफियों का मसला आज हल हो जाएगा। जल्द ही जिसका जो हक है उसे अदा कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन वालिदा, सुम्बुल आगा कई दिनों से मुझे अपने कमरे से निकलने नहीं दे रहे। माज़अल्लाह बगावत का खौफ है क्या? दुश्मन यही तो करने की कोशिश में है महमा, कि बगावत करवाकर मुझे आका के सामने रुस्वा करने में कामयाब हो जाए। वालिदा, आखिर कौन है ये दुश्मन? खजीना सुल्तान और शाह सुल्तान है क्या? उन दोनों के अलावा एक और दुश्मन भी है हमारा, जो अब तक सबकी नजरों से छुपकर हमला करता है हम पर। क्या मतलब इसका? आप किसकी बात कर रही हैं? माहिदौरा। माहिदौरा सुल्तान में इतनी ताकत नहीं है। ये मुनासिब नहीं कि आप उन्हें अपना दुश्मन समझें। वो नहीं हो सकती हैं। मेरी प्यारी दुख्तर, मेरी महताब, जिस तरह से मेरा कीमती असासा तुम और तुम्हारे भाई हैं, उसी तरह माहिदौरा का भी एक असासा है, जो उसके लिए उसकी ताकत का सरचश्मा है। शहजादे मुस्तफा, मुस्तफा, मेरे बेटे तुम मुझ पर नाराज हो, लेकिन मैं सिर्फ एहतियात करने का कह रही थी। खानदान की वाहिद उम्मीद तुम ही हो। आप इत्मीनान रखें, जब तक जिंदा हूं हुर्रम सुल्तान पुरसुकून नहीं रह पाएगी। अहमियत भी इसी बात की है। हुर्रम तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहती। तुम्हारी हर सांस को वो अपनी औलाद के लिए खतरा समझती है। इस वजह से हमला करेगी वो मौका मिलते ही, पूरी कुव्वत के साथ। आप यकीन खातिर रखकर मुझ पर एतमाद करने वाले था। अगर मुझ पे हमला किया तो खामोश नहीं रहूंगा मैं भी। उसका जवाब उसी शिद्दत से दूंगा। याद रखेगी सारी जिंदगी। नहीं, तुम उस कम नस्ल को मौका ना दो, काफी है। बाकी सब मैं देख लूंगी। इसका क्या मतलब? आप क्या करेंगी? एक शहजादे की मां को जो करना चाहिए, अपने बेटे को बचाऊंगी। मुस्तफा, तुम्हारी हिफाजत की खातिर अगर मुझे जहन्नुम की आग में भी जलना पड़ा तो खुशी चल जाऊंगी। आका की खैर मौजूदगी में मौका मिल गया फिर से। उनका बस चले तो मुझे, तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को समंदर में गरकाब करवा दें। वालिदा, बरादर ऐसी साजिश का हिस्सा होंगे मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। वो हमें चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं हमसे। दुरुस्त, लेकिन अतराफ में मौजूद हमारी दुश्मन औरतों के होते हुए ये सब करना बहुत मुमकिन है। तुम लोगों से आज जितनी मोहब्बत करता है, कल नफरत में बदल जाएगी वो। माजरत चाहता हूँ मलिका। कहो आगा। बेनेडिक्ट की खातून सीनियरा पोर्शा तशरीफ लाई हैं, आपसे मुलाकात की मुंतजिर हैं। खूब, कुछ देर में आ रही हूँ। महरमा, मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहती थी, क्योंकि आने वाला वक्त कैसा हो इस बारे में कुछ नहीं जानते हम लोग। हमें मोहतात रहना होगा। हर चीज और हर शख्स से मोहतात रहने की जरूरत है। मेरी बात समझ गई हो तुम? वालिदा, मुझे हर बात का एहसास है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। आपकी मदद करना चाहती हूँ, मगर आप इसकी इजाजत नहीं दे रही, दूर रख रही हैं मुझे। तुम्हें नुकसान पहुँचाए मैं नहीं चाहती हूँ।
लेकिन तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए काफी हौसलामंद है। तुम एक शहजादी हो, पैदाइशी शहजादी हो। आका की जान है तुम में, उनका खून हो तुम। ना शाह सुल्तान ना ही खजीना सुल्तान कोई भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो देख रही हूँ वो तुम भी देखो, जो सुन रही हूँ वो तुम भी सुनो, और मेरी तरह बात करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, ताकि तुम्हारे भाइयों के लिए जंग करते वक्त मेरा ध्यान किसी और तरफ ना हो। आप मुतमईन रहें वालिदा, मैंने आपसे एक वादा किया था, वो ये कि मैं हमेशा अपने भाइयों के साथ रहूंगी। कतन आप कोई शक न रखें, क्योंकि मैं अपने सब भाइयों की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो महल में चलते हैं। लड़कियों, तुम सब ने देख लिया कि मलिका किसी की हक तलफी नहीं करती। सबर का फल मीठा होता है। सबके सब सबर करने वाले आज अपना वजीफा ले रहे हैं। सब एक कतार बनाओ, भीड़ न लगाओ। बिल्कुल फिक्र मत करो, सबके लिए अशरफिया हैं। सुंबुल आगा कहाँ है? वो मसरूफ हैं आगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो अशरफियां कहाँ से आई? कोई मालूमात है तुम्हारे पास? मुझे क्या मालूम आगा, हुरन सुल्तान है आखिर वो, उनकी हुकूमत पर सवाल नहीं कर सकते। सर्वे खातून के कातिल कहाँ है फारिया काल्फा? क्या हुआ उसका? होना क्या था, फांसी दे दी उसे। और तुम क्यों पूछ रही हो ये? अशरफियां लो और जाओ। मलिका, आपसे जिनका जिक्र किया था वेनेडिक्ट की ताजिर सिन्योरा पोर्शिया, इन खातून के साथ बरसों से मेरे दोस्ताना मरासिम हैं। सेनोरा पोर्शिया, राफेल खातून से आपकी बहुत तारीफें सुनी है, कैसी हैं आप? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ मलिका। दीगर तमाम औरतों की तरह मुझे भी आपको देखने का शौक था। जितना सुना उससे ज्यादा खूबसूरत पाया आपको। मलिका, ये लीजिए। आपकी फराहम की गई अशरफियों के लिए शुक्रगुजार हूँ। जानती ही हैं कि जंग के जमाने में ऐसी परेशानियां आ ही जाती हैं। आप जैसी अजीम शान मलिका की खिदमत करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। आपकी ये रकम बमै मुनाफा जल्द लौटा दी जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया मलिका। ये जमानतनामा अशरफियों की अदायगी के वक्त वापस कर दूंगी। फारिया काल्फा, तुम्हें मालूम होगा मलिका ने अशरफियों के बंदोबस्त के लिए ताजिरों से कर्ज लिया है, ऐसा सुना है मैंने। क्या ये दुरुस्त है? तुम्हें तकलीफ क्या है खातून? हाँ, क्यों पूछ रही हो तुम सवाल? मैं तो यूं ही पूछ रही थी बस। निहाल खातून, तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? कौन तुमसे ये बातें करवा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम मेरी नजरों में हो खातून। हरगिज मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है फारिया काल्फा, वैसे ही सवाल पूछ लिया। आइंदा दिमाग खराब मत करना, कसम से जान ले लूंगी तुम्हारी। वजीफा मिल गया तुम्हें, अब जाओ। फजूल में मुसीबत खड़ी मत करो। लड़कियों, तैयार हो जाओ, सब सीधी हमाम जाओगी। सुना नहीं क्या? खड़ी क्यों हो? जल्दी करो। फारिया काल्फा, अफीफा खातून,
सुल्तान मुअज्जम का मकतूब आया है, मलिका को देकर आओ तुम। लड़कियों, आका ने मलिका के लिए मकतूब भेजा है। कौन ये खुशखबरी हुरम सुल्तान तक पहुंचाना चाहता है? मलिका, शुक्र है ये मुसीबत हमारे सरों से आखिर टल ही गई, लेकिन कर्जा काफी ज्यादा हो गया है मलिका। मेरी जमीन की फरोख्त के लिए कागजात तैयार करो संबल, किसी को भी मालूम ना हो, खास तौर पर शाह सुल्तान को। हिफाजती इक़दामात में कोताही मत करना बिल्कुल भी। यकीनन वो लोग आका के वापस आने के बाद जरूर कुछ करेंगे। आप ठीक कहती हैं, वो हरम में जरूर कोई हंगामा करवाना चाहेंगे, लेकिन आप पर कोई हमला करने की हिम्मत करे, मेरा नहीं है ख्याल। शाह सुल्तान के जहन में क्या चल रहा होगा आखिर? आओ। मलिका, आका की तरफ से आपके लिए मकतूब आया है। लाओ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। तखलिया चाहती हूँ मैं। मलिका, ए जुल्फे तरहदार की मलिका, अपनी ताबनाक आंखों से मुझे मुस्तरब और हिजान खेज बनाने वाली मेरी मलिका, मेरी हुक्मरां हुरम, अल्लाह शाहिद है कि कुफ्फार की सरजमी पर कश्त व खून की बू के दरमियान मैं रोज और शब तुम्हारी मौतर जुल्फों की खुशबू सूंघने की दुआ मांगता रहता हूँ। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारा मकतूब मुझे इतनी जल्दी मौसूल हुआ। वो जैसे हवा के दोष पर मेरे पास आ पहुंचा हो। तुमने अपने बादशाह से अजाब हिजर का शिकवा किया है कि तुम लैला और मजनू की कहानी पर जरा गौर करती तो तुम्हें इस बात का इल्म हो जाता। वो जब और जिस हाल में भी रहे हमेशा खुदा का शुक्र बजा लाते रहे। तुम मेरे मुताल्लिक अंदेशे पालकर खुद को बेसबब हलकान किए जा रही हो। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि तुमसे फिराक के सिवा मुझे कोई और गम या परेशानी नहीं है। महमद खान और सलीम खान सेहतमंद हैं और मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी दुआओं के मुतालिक सुनकर वो दोनों खुश हुए। तुम्हारे जरिए बेअज़त जहांगीर और महरमा की खबर पाकर मैं बहुत मसरूर हुआ। जब तक तुम मेरे हमरा हो मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेरी चश्मे असर अंगेज जुल्फ रेशम की मालिक, मेरी मलिका, मेरी हुक्मरान, मेरी हुरम, ये मुहिब्बी तुम्हारी मोहब्बत में आशुफ्ताए सर बन चुका है। ऐ मेरे मरहमे दिल, अपने लबों से मुझे हयात बख्शने वाले मेरे महबूब,